Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. And today in this video, we'll discuss the ATC question paper of 2018. So I'll discuss the quant section in this video. Let's start with question number 1. The number of students in section A and B are 60 and 20. Okay, the average score in mathematics of students in A is 70 and that of A and B together is 60. Okay, so number of students in A is 60, in B it's 70, and the average of A is, here I am writing, average of A is 70, B is unknown. What's the total? 130, and the average of the total is 63. Okay, so how to find? Just multiply these two plus 70x upon me 130 equals to is equal to 63. Just cancel out the 0 first of all, then what will it become? upon में 13 equal to 63. देखो अभी जब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप लोग मेरा सोल्यूशन मत देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कैसे होगा, चाहे करो मत, सोच लो कि कैसे होगा और उसके बाद देखो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कर लोगे साथ साथ तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 420 + 7x इक्वल टू 39 and 78, so it is 819. So 7x equal to 399 and x will be 57. So 57 will be the answer to this question. Okay, I hope you get it, you get the concept. So this is two trains start at the same time, one from A and another from B. Okay, so just take A here and B here. So one is going from here to there and the another one is from B to A. After passing each other on their way, they take 50 minutes and 3 or 20 minutes respectively to reach their respective destination. Okay, लेट्स से यूज द पॉइंट एक्स, यहाँ वो दोनों मिलती हैं और यहाँ के बाद ए को बी तक जाने के लिए टाइम लगता है 50 मिनट, बी को ए तक जाने के लिए टाइम लगता है 3 hours 20 minutes. So can I write it like this? Okay, so we know the formula, like firstly let me completely read the question. If the speed of the train starting from A is 72, okay, speed of this train is 72 and this train is unknown. Okay, so this is the formula, s1 by s2 equal to under root t2 by t1. This is the formula, we just inverse the time here. So s1 is known to us, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती हैं और आधा टाइम दे रखा है। आधे का मतलब मेरा ये नहीं है कि हाफ ऑफ टाइम, आधे का मतलब है कि किसी पॉइंट पे मिलती है और फिर आगे का टाइम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे रखा है, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। दिस इज गिवन, s2 is unknown. What is t2? This one, 10 by 3 and 5 by 6. I've cancelled out the zeros, so it's 2. So 20 upon 5, it's 4, and outside the root it's 2. It's 36. So s2 will be 36 kilometer per hour. Okay, I hope you get it. The next is a person sold an article for this. Okay, sold an article, it means it's SP. SP is given. Had he offered a discount of 10% on the selling price, it would have earned he would have earned a profit of 8%. Okay, if he sells the article now at the profit of 12%, then the selling price will be okay. So वो बोल रहे हैं, देखो पहले तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द सेलिंग प्राइस डिस्काउंट जो इम्पोर्टेंट है। जो लोग टच में है क्वांट के वो समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जो होता है ना वो एमपी पे होता है। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो हम देखते भी हैं आर्टिकल्स के पीछे एमआरपी, मार्क रिटेल प्राइस।
ठीक है, वो कुछ बढ़ा के लिखा होता है, जो एक्चुअल का सीपी होता है ना वो उससे कुछ बढ़ा के लिखा होता है, एक्चुअल का एसपी होता है उससे कुछ बढ़ा के लिखा होता है, ताकि डिस्काउंट जब देते हैं तो उनको फिर भी प्रॉफिट हो। समझ गए? तो इसलिए जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी पे होता है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस पे अगर वो देता है 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। तो इसका 1/10 वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि वो 1350 में अगर वो बेचेगा, he would have earned a profit of 8%। अगर वो डिस्काउंट भी दे रहा है ना तो भी वो 8% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस, जो जितना उसको पड़ा है शॉपकीपर को। ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में वो चीज़ बनी के तैयार हुई है, तो वो हमेशा होता है हमारा सीपी पे। ओके, तो अभी बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 8% का। 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 25, मतलब कि 25 रुपए की कोई चीज़ थी और 2 का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि उसने 27 में बेची है। ठीक है, तो ये हो गया 8% का यहाँ पे प्रॉफिट। 25 की चीज़ थी कोई और 2 का ये प्रॉफिट, ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो 25 की चीज़ को उसने 27 में बेचा, 27 का हमें क्या दे रखा है वैल्यू, 1350। तो यहाँ से हमारा सीपी निकल जाएगा, 1350 अपॉन में 27 इंटू में 25। ठीक है, 9 पे चला जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 9 × 5 = 45, 0। ठीक है, 50, 25 × 5 = 125, 1250, यानी कि उसका जो सीपी था ना, जितने पे वो बना था, वो आपका 1250 था। अब वो बोल रहा है इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल नाउ एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% देन द सेलिंग प्राइस विल बी। अब ये आर्टिकल को 12% पे बेचेगा, 12% मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 4×3 = 12, 25, मतलब 25 की चीज़ को 28 में बेचेगा वो। ठीक है, तो 25 का मतलब आपका ये है, तो 28 का मतलब निकाल लो, 28 का मतलब निकाल लो, 25×5 = 125, 0, 0, 8×5 = 40, 4, 5×2 = 10 और 4 = 14, तो 1400 रुपये होगा अब उसका सेलिंग प्राइस। दिस विल बी द आंसर। So the next question is, the compound interest occurred on a sum of rupees 4400 at the end of 2 years is this। तो हमें CI दे रखा है compound interest, what would be the simple interest on the same at the same rate for double the time। ठीक है, तो देखो फिर से वही चीज़ है कि क्लोज क्लोज दे रखे हैं, वरना तो हमें क्या होगा कि अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 2 साल की सीआई से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जैसे 1000 पे है 10% के हिसाब से, तो वो हमेशा 100 100 100 ये फिक्स होता है सिंपल इंटरेस्ट आपका, जो कि हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे निकलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब कि पहले साल का आपका जैसे 100 था, आपका हो गया 1100 प्रिंसिपल, तो अगले साल का जब इंटरेस्ट निकलेगा तो इस 1100 पे निकलेगा, इस प्रिंसिपल पे नहीं निकलेगा, अमाउंट पे निकलता है सीआई हमेशा। ठीक है, तो हम ऐसे सोच सकते थे कि जो 2 साल का सीआई होगा वो इससे तो कम होगा, तो हम अगर ऑप्शन से जाएंगे 2 साल का सीआई जिसमें भी हमें कम लगता हम वो टिक कर सकते थे, बट सिंस द ऑप्शंस आर वेरी वेरी क्लोज टू वन अनदर, सो वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। सो लेट मी रेज इट। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा रेट। ठीक है, रेट निकालने के बाद फिर हम उसका निकाल पाएंगे व्हाट इज दिस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी हम चलो हम इसका रेट निकालते हैं, फॉर्मूला से ही निकलेगा। आई होप आप सबको फॉर्मूला याद होगा। तो क्या रहता है इसका फॉर्मूला, पी इंटू में 1+R/100 टी इक्वल्स टू अमाउंट। ओके, अमाउंट होता है ये, इंटरेस्ट नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट के रेट में ना, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट होता है P×R×T/100, तो ये हमारा इंटरेस्ट आता है, पर इस फॉर्मूला में यहाँ पे अमाउंट होता है।
सो P प्रिंसिपल आपका क्या है 4400 इंटू में 1 प्लस आर आपको निकालना है अपॉन में 100, टाइम आपको 2 दे रखा है, और अमाउंट दिस प्लस दिस, सो व्हाट वुड इट बी, इट वुड बी 5519.36. ओके, सो यहाँ ले आएंगे इसको 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू, सॉरी दिस इज नथिंग, अंडर रूट ऑफ 551936 अपॉन 44 इंटू 10⁴। तो ये आपका 11 से हो जाएगा डिवाइड। आपको कैलकुलेशन तो अपनी सही करनी ही पड़ेगी हर एग्जाम के लिए, केवल एटीसी के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए। 4 5 0 1 8 3 7 6। ओके, तो अभी 4 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 0 4 दूनी 8 2 1 5 4 4। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 112 का स्क्वायर रूट। अभी आप जैसे मुझे जैसे याद था ये 112 का है, ठीक है। अब ये किसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट पूछा है मैंने, आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बहुत बेसिक होते हैं, बहुत बार आएंगे क्वेश्चंस में, तो आपको वो अपने आप याद हो जाएंगे, वरना आप निकाल भी सकते हैं। ऐसे करके हम निकालते थे ना, वैसे आप निकाल भी सकते हैं, निकल जाएगा। अगर आपको नहीं आता निकालना मुझे बताना, मैं वो बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, पक्के से बता देना। किसी भी अगर एक पर्सन का डाउट होगा तो मैं बता दूंगी। तो ये आ जाएगा आपका 112, और ये 10⁴ था तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये क्या बन गया अब 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स टू 2/100। तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, इससे कट जाएगा, आर आपका आ गया 12%। ठीक है, अब तो निकाल ही लोगे सिंपल इंटरेस्ट। वो उसने बोला है डबल द टाइम, मतलब 4 साल के लिए। ठीक है, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 3 2 192, 2 9 2 11 का 1 1 1 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, बस क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी भी चीज़ की बनाऊँ, नेक्स्ट वीडियो चाहे इंग्लिश की या मैथ्स की, आई मीन क्वांट की, मैं आपको बता दूंगी इसे। तो पाई चार्ट 28 में क्या बोल रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक बार ये देख लो कि क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल। ओके, इसमें वो लोग दे रखे हैं जो कि स्कूल अटेंड करते हैं, और उसमें पूरा टोटल दे रखा है। ठीक है, so what is the ratio of total number of children in school C and D to total number of children attending school in A and C? Okay, so C and D, C and D 16 और 14 30, 30% ऑफ 5400, एंड A and C, A and C 8 और 4 2 42, 42% ऑफ 5400। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ और है क्या? ओके, अटेंडिंग स्कूल इन ए एन सी है भाई, तो ये इधर इसका निकालना है ए एन सी। 8 और 0 आंसर लाके 40। मैं भी सोचूं सभी तो कट गया है, पूछ भी क्यों रखा है ये, इसको नहीं लिखो। 20% ऑफ 54 और ये 32, 40 32। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये आपका कटेगा 54 27 16 27 27 दिए 81, 16 चौके 64। तो और तो नहीं कटेगा, यही है आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। अगर आपका सेम ही पाईग्राफ में है ना तो आप उसको ऐड कर सकते हो आसानी से, ऐसा नहीं कि इसका अलग निकाल रहे हो इसका अलग निकाल रहे हो, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। ओ, तो अब क्वेश्चन आया जिसमें गलतियां होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और फिर से वही है कि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, कुछ एस्टिमेशन से भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जितने ही ऑफ है, मल्टीप्लाई है,
सॉरी ऑफ है, डिवाइड है, इन सबको हटा के एक बिल्कुल सिंपल सा लिख लो। कैसे? 5 चौके 20 और 3 23, 23/4 माइनस 3/7 इंटू में 15 चौके 60 दिया 63/4 प्लस में 35 दूनी 70 और 2 72/35। अभी इंटू हो जाएगा, इंटू में 4 इंटू में 25 पंजा 125, 125 और ये कितना हो गया, सॉरी कहाँ गया, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125, 125 और आपका ये कितना हो गया 29, 144। तो 25/144 ये उल्टा हो जाएगा ना। देखो मैंने ये डिवाइड हटाया तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 4, और सिंस दिस ऑफ इज आफ्टर दिस डिवाइड, दिस डिविजन साइन, तो ये भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर खाली ऑफ होता है तो ये सीधा ही रहता है, जैसे यहाँ पे सीधा है, वरना ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं सीधा सीधा लिख दूंगी, ये प्लस वाला हम रखेंगे ही नहीं, सीधा इसको मैं सॉल्व करके लिख दूंगी। जैसे इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 3/4 इंटू में 4/7 इंटू में 8 इंटू में 2/3 इंटू में 5/4। अब देखो फटाफट जो जो ये क्या था, यहाँ पे प्लस था ना, यस दिस इज अ प्लस, तो जो जो कट रहे हैं ना उनको फटाफट काटो पहले। 2, 2, 5, 7, याद है कि आपका 10/7 याद रखना। ठीक है, कि यहाँ था 10/7। अब देखो ये क्या है, 23/4, 3/7, पहले इसको कर लो। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है ना, 7×9 = 63, ओहो 7×9 = 63, 9×3 = 27, 27/4, 27×3 -4/4 -1। ठीक है, -1 प्लस 10/7, 3 से 3 गया, से 2 गया, 5×2 = 10, 2 20/7। ठीक है, 3, 3/7, 20/7। ठीक है, 3/20 यानी कि 1.5, यानी कि 1.5। ठीक है, तो देख लो किसके बीच में है। 1 मिनट, कुछ गलती हुई है क्या हमसे? ऐसा तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा ये 0 भी तो था, तो 0.15। ठीक है, तो देख लो किसके बीच में है, यही आंसर है। ठीक है, फिर से मल्टीपल ये वाला सिंप्लीफिकेशन वाला है। हम ना ये क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स, ये क्या है, ये डेसिमल वगैरह, पर नहीं, इन्होंने कुछ कुछ ना कुछ तो कुछ मोटो है कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। Like we have to follow the rule of a square minus b square in this question. So we have to put this 9 under this bracket. Okay. So इसका स्क्वायर होता है 9, 3 का 4.1 इंटू में 26.21 -12.3 इंटू में 4.93 अपॉन, एक काम करो यहाँ से 4.1 भी कॉमन ही ले लो, इसको भी हटा दो, दिस विल बी 3, और यहाँ इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 4.93 का स्क्वायर, तो 26.21 माइनस 3 इंटू में 4.93 प्लस 3 इंटू 4.93, कट गया ना। ठीक है, 4.1 अपॉन 3×3 = 9, 27 का 27 2×4 = 12 और 2×14 4.79, 26.21, 9 1 0 1 7 2 9 0 5 लगे 1, कहाँ से लगे 41.1। So this will be the answer. Okay. 10 persons begin to work together on a job, but after some days, 4 persons leave. As a result, the job which could have been completed in 40 days was completed in 50 days. How many days after commencement of the work did the 4 persons leave? So 10 लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड में रहे 6, मतलब पता नहीं कब रहे 6 लोग,
फिर वो लोग काम को करने लगे, काम खत्म हुआ 50 दिन में। अगर 10 लोग स्टार्टिंग से काम करते तो ये काम खत्म होता 40 दिन में। ठीक है, 4 लेफ्ट। ओके, तो देखो हम अगर 10 लोग 40 दिन तक काम करते तो टोटल यूनिट क्या होती, टोटल वर्क क्या होता, 40 यूनिट्स। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि 6 बंदों ने ही काम किया बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो 50 दिन में कंप्लीट हुए। ठीक है, हमने वो 4 को एक बार हमने भूल गए कि वो 4 थे कभी, तो टोटल कितना काम हुआ, 300 यूनिट। और ये काम तो नहीं हो पा रहा है फिट, तो कितने यूनिट्स बची हैं, 100 यूनिट। इसका मतलब जो ये 100 यूनिट है किसी ने की है। अच्छा, फिर हमें याद आया कि हम इन 4 को तो भूल ही गए थे, इन 4 को तो भूल ही गए थे, तो यानी कि ये 100 वाला काम वो 4 लोगों ने किया है, तो 100 यूनिट थी, 4 लोगों ने कितने दिन में की है, 25 दिन में। इसका मतलब 25 दिन बाद वो लोग गए हैं। आगे समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, LR इसी को बोलते हैं, उससे भी आपके सॉल्व होते हैं। जरूरी नहीं आप हर चीज को फॉर्मूला से ही करो, हर चीज को क्वांट में मैथ्स के जो रूल्स हैं उनसे ही करो। Ratio of mean proportion between this and the third proportion between this. Okay, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, A/B इक्वल टू B/C, so B equal to root AC. B is the mean proportion, and third proportion is what, it's A/B equal to B/C, and C equal to B square by A. This is the third proportion. तो अभी हम B निकालेंगे, B की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 इंटू में 32.4, एंड C की वैल्यू आपकी आ गई 1.2 इंटू 1.2 अपॉन 0.8। सो 4, ये 4 का होता है स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, ये 18 का स्क्वायर होता है, 18 बाहर आ जाएगा, 18 चौके 72, एंड ये नीचे होगा आपका 100, तो नीचे आएगा 10 बार, तो ये हो गया 7.2। बी की वैल्यू आ गई आपकी 7.2। इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो मे भी शायद आगे कुछ कट जाए, मल्टीप्लाई ना भी करो, तो हमें बी और सी का रेशो निकालना है। ठीक है, ये जो आया है इसका और इसका, तो 7.2 अपॉन में 1.2 इंटू में 1.2 इंटू में 0.8, ये तो सारे कट गए पॉइंट। ठीक है, 12 छीक 72, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 4/1 रेशो। ठीक है, क्या निकालना है इसमें हमें, what is the approximate percentage of profit earned by all the companies together in 2016? So the formula of profit is this, and now let's add all the income, this and this, 40 और 50 90। ठीक है, 90, ये और ये हो गया आपका 80, और ये हो गया 47.5, 0.5, 7, 9, 8, 17 और 4 21। ठीक है, and what is the expenditure, it's 30 plus 40, 70 plus 45, 70 plus 45, 115, and it's 42.5 plus 37.5, यानी कि 37 और 43, 80, 195. So profit will be minus 195 upon 195 into में 100, 0.5, क्या है 0.5, हाँ 2, 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना सॉल्व। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा तो नहीं आना चाहिए 1.5, कुछ तो रहेगा, या तो 11.51 करके कुछ आ रहा होगा, या 2 करके, मतलब लेस देन 5 यहाँ पे, या फिर ये 4.8 कुछ 4.7 4.9 ऐसा कुछ होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कर दिया होगा। अप्रोक्सीमेट ही बताना है, तो ट्राई कैलकुलेटिंग इट।
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग। देखो इसमें कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस को हम फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है तो टाइम लगेगा इसमें। सो बेटर है हम बाकी क्वेश्चंस कर लें और इसको एक बार छोड़ दें। पर ठीक है, अभी तो हम इसको कर रहे हैं तो करके देखते हैं। एक मिनट। तो मेरे अकॉर्डिंग ना आप लोगों को ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ए बी का इसमें पूछ रखा है, ए बी डी, और ऊपर पूछ रखा है ए बी सी का। तो ये सारा ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, इनकी आप टोटल टोटल निकाल लो, ठीक है, कि टोटल कितने कितने बच्चे हैं ए बी सी इन सारे ब्रेकअप्स में, एंड देन फिर ये कितने कितने अटेंड कर रहे हैं, और फिर माइनस कर देना। जैसे टोटल ए का निकला जाए, अभी ये एक का मैं निकाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे ए का है 28%, तो 28 इंटू में 54, ठीक है, ये हो जाएगा 112, और ये हो जाएगा आपका 140। टोटल हो गई इसके 1512, ठीक है। एंड दोज हु आर अटेंडिंग 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 704। तो नॉट अटेंडिंग क्या हो गए, 1512 माइनस 704, आठ सौ आठ, ठीक है, नॉट अटेंडिंग। ये हो गए ए के। ऐसे ही हमें सबका ही निकालना पड़ेगा जिस चीज़ का पूछ रखा है, और फिर टोटल ए प्लस बी प्लस सी जो ऊपर वाले पाए चार्ट से आएगा इंटू में 100, ऐसे हमारी निकल जाएगी परसेंटेज। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और तो आप लोग करके देखना, आंसर ना आए तो मुझे बताना, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। Sudha bought an article for rupees 6200 and sold it at a loss of 25%। 25% का मतलब 1/4, मतलब कि 4 रुपए की चीज़ थी, उसने 3 में बेची है, ठीक है। 1/4 कैसे आया, ये 25/100 से 1/4। With this amount she bought another article and sold it at a gain of 4%। 4% मतलब 1/25। 25 की चीज़ 26 में बेचना, इट्स गेन। सो ओवरऑल गेन और लॉस बताना है। देखो इतना ज़्यादा उसको लॉस हुआ है, ठीक है, और आगे अमाउंट भी कम है, और उसको लॉस बहुत कम हुआ है, तो क्या कभी ना, सॉरी, उसको गेन बहुत कम हुआ है, तो क्या कभी ये 4% का गेन कम अमाउंट पे क्या इस लॉस को कॉम्पनसेट कर पाएगा? कभी भी नहीं, अनटिल अनलेस ये वाला अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, इससे बहुत ज़्यादा हो, so it will be able to compensate, but in this question it will never be able to compensate this loss of 25%। सो अल्टीमेट जो होगा वो लॉस होगा, तो हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं गेन व है। इन्होंने तो गेन ही आंसर दे रखे, नो नहीं होगा ऐसा, ये तो दो ऑप्शंस आएंगे ही नहीं, लॉस ही लॉस होगा। खुद सोचो बिल्कुल एलआर से, लॉजिकल रीजनिंग से, कि ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, हमेशा उसको लॉस ही रहेगा, क्योंकि अमाउंट तो भाई अभी और भी कम है। देख लेते हैं, उसने 6200 की चीज़ खरीदी थी और उसने 25% लॉस पे बेची है, मतलब कि 4 की चीज़ उसने 3 पे बेची है। 4 की वैल्यू है आपकी 6200, तो 3 की कितनी हो गई? एम आई गोइंग राइट? यस आई एम। तो ये आपका हो जाएगा 3102, 1550, 5 3 15 का 50 लगे, 15 3 45 और 1 46, इतने में बेची है उसने, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल उसने इतने में खरीदा है और उसने 4% गेन पे बेचा है, मतलब उसने 25 की चीज़ 26 में बेची है। ये 25 वैल्यू है और उसने 26 में बेची है, 26, तो ये कितना आ जाएगा?
एक दो 25 एकम 25 हो जाएगा क्या 25 पे? 25 एकम 25 एक दो 25 अट्ठा 200 पच्चीस से 25 55 जाए 25 का 150 186 इंटू में 26 so it will be 36. Okay, so what will be the overall loss? So this will be the overall loss. Okay, you can calculate it like 4 6 11 में से इतने गए 3 1 अपॉन में 62. ठीक है, इसको कैलकुलेट करना कितना आता है बताना मुझे, ये लॉस है उसको. ठीक है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे. अगर ये होता ना 5% लॉस तो अभी सीधा सीधा कटता हुआ दिख जाता, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. करके ही देख लेते हैं इसको. 31 682 682 62 22 22% का आ गया. ये 100 तो उससे कट जाएगा ना यार 6200 से, तो आपको 22% का लॉस आ रहा है. ठीक है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि बोनस मार्क्स मिले होंगे इसके, बाकी ये पता नहीं. A field in the shape of a trapezium. Okay, trapezium. Whose parallel sides measure 250 meter and 110 meter. Okay, and non-parallel sides measure 150 and 130. ये मैंने बड़ी बना दी थी ना इसलिए मैंने लिख दिया, कहीं भी लिख तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. What is the area of the field? अच्छा, तो एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ठीक है, अब हमारे पास हाइट तो है नहीं, ये तो निकल जाएगा. अब हम हाइट कैसे निकालेंगे? कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. अगर ये दोनों साइड इक्वल होती ना, कोई नीड ही नहीं थी फिर तो हम सीधा रेक्टेंगल बनाते और क्वेश्चन हो जाता, पर ये दोनों अनइक्वल दे रखी हैं. तो पैरेललोग्राम बनाओ. ये 130 है तो ये 130, ये 110 है तो ये 110, ये पूरी 250 है, ये 110 है, 140. हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में आई गेस, पता नहीं 9th में आता है, 9th 10th में एक में से आता है हीरोन्स फॉर्मूला कि सेमी पैरामीटर निकालते हैं. S minus A, S minus B, S minus C, the entire under root. It will give you the area of this triangle. Okay, तो ये हाइट है. इसका एक और तरह से एरिया निकल सकता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, और यहाँ से भी फिर दोनों को हम कंपेयर कर देंगे. स्पेस तो नहीं है, चलो हम यहाँ देख लेते हैं. इससे निकालते हैं तो इतना हो जाएगा 4 और 3 7 13 14 15 13 14 15. ये आपका हो गया 42 420. तो सेमी पैरामीटर आपका हो जाएगा 210. ठीक है, तो ये लेते हैं 210 माइनस, अब इनको सबको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 80. 210 माइनस 150 60 70. ठीक है, ये आ गया. अब देखो 70 इसमें है 70 इसमें भी है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 70. 2 70 हो गए, बाहर निकाल लो 70 को. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, कुछ और निकल सकता है क्या? चलो देखते हैं, अभी दोबारा लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 30. ठीक है, तो 2 निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 140
इंटू में 3 निकाल लो, इंटू में 10 निकाल लो और इंटू में 2 निकाल लो। आ गया समझ में? 2 यहाँ से, 10 एक ही 0 1 0 100 बन गया, तो 10 यहाँ से, 3 यहाँ से, एक और एक 2 और एक और एक 2 यहाँ से। ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये 3 दूनी 6, 14 6 कितना होता है 84, 8400। 8400 आपका एरिया आ गया। उसको हम इससे कंपेयर कर देंगे 1/2 इंटू 140 इंटू हाइट 8400। ठीक है। 70 12 सत्ते 84 120, तो आपकी हाइट आ गई 120। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेज करती हूँ फिर इसको। चलो मैं कर रही हूँ रेज, थोड़ा सा ही करूँगी। तो अब हमारी हाइट आ गई है। तो एरिया क्या था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनका सम 360 इंटू में हाइट, तो कितना हो गया ये 60, तो 6 का क्यूब बन गया 216 इंटू में 100, 21600 आ रहा है हमारा। तो अच्छा हेक्टेयर्स में बताना है, ओके फाइन। अभी हमारा आया है ये मीटर स्क्वायर में, है ना? तो मीटर स्क्वायर में आया है। हेक्टेयर क्या होता है हमारा, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इससे 10⁴ से डिवाइड कर देंगे, सो 2.16। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 4200 is divided among A, B, C and D such that B share is equal to share of C. Okay. तो B by C आपको दे रखा है 2/3, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ बहुत अच्छा रेशो का। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब तरीका सही है सॉल्व करने का। B और C का आपको रेशो दे रखा है 2/3 एंड द शेयर ऑफ C इज इक्वल टू 9/13 ऑफ द शेयर ऑफ D, यानी कि C/D दे रखा है आपको 9/13। If the ratio of the share of A and B is 8/9, then the difference between the shares of B and D will be, okay. So देखो जितने भी ब्लैंक्स है ना, ब्लैंक्स के साथ, ब्लैंक के साथ वाला लिख दो। ब्लैंक के साथ कौन है 2, 2 लिख दो। ब्लैंक के साथ कौन है 3, 3 लिख दो। ब्लैंक के साथ 9, ब्लैंक के साथ 9, ब्लैंक के साथ 9, ब्लैंक के साथ 9। ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पर पहले देख लो कुछ कट तो नहीं रहे। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है कि ये 3 का ना कॉमन कॉमन सा है, तो ये काट दो 3, ये काट दो 3, ये यहाँ पे, और नहीं ये तो ऑलरेडी कट चुका है ना, आई एम सॉरी वेट, दोबारा ही लिख देंगे हम इसको, ऑलरेडी ले चुके हैं ना क्योंकि हम इस वाले कॉलम से। तो यहाँ काट दो 3। अब देखो मुझे फिर से कॉमन दिख रहा है 3 3 3 3। ओके अब कुछ कॉमन नहीं है इसमें, इसमें तो कट जाएगा लेकिन इसमें रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 13 तिये 39। ठीक है। तो आपका फाइनल रेशो ये हो जाएगा 16, 18, 27 एंड 39। ठीक है। तो ये आपका इन चारों के बीच में रेशो है। इंडिविजुअल देखोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, पर ये चारों के बीच में आ गया रेशो। ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम, ब्लैंक के साथ का लिख दो जो भी हो। सो टोटल 4200 इज गिवन, तो इन सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 यानी कि 34, और ये कितना हो जाएगा 9 7 16 6, क्या उतना हो जाएगा 90 100। So the value of 100 is given as 4200 and the multiple of 42. So what we have to find the difference between B and D. 39 minus 18, 1 2, 21 into 42, 4 एकम 4 8, 882 will be the answer. I hope it's clear. So अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बस क्वेश्चन नंबर लिख देना, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेरी इन 14 नंबर क्वेश्चन जस्ट राइट
14th, क्वेरी इन 14 और डाउट इन 14। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ भी मुझे बता देना। बाकी हाँ, कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आ ही गया होगा कि जैसे रेशो है, लिख लिया हमने पहले, हमें 2 और 3 दे रखा था। उसके बाद ब्लैंक जो आपने लगाए हैं उसमें ब्लैंक के इमीडिएट वाला, ठीक है? और फिर कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लाई कर देना। कॉमन लेना है तो भी कॉलम, हर कॉलम में वो चीज़ होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा है बी और डी के बीच का डिफरेंस, तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? पहले तो हमने इन सबको टोटल कर लिया था, ठीक है? टोटल करके हमारा आ रहा है 100, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 4200, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 42 से। 42 हमारा फैक्टर है। अब हमने इनके डिफरेंस को देखा कि हमारा तो आ रहा है 21, पर क्वेश्चन की वैल्यू हमारी वैल्यू की 42 टाइम्स है, तो इसलिए हमने 42 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 882 आपका आंसर आ गया, ठीक है? सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या दिस इज द वन। तो सैलरी ऑफ ए इस, देखो ये फिर से रेशियो का लग रहा है मुझे, नहीं, दो तीन चीज़ों का मिक्स सा है ये। चलो देखते हैं। द सैलरी ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। 50% मोर देन मतलब कि 1/2। कैसे आया 1/2? 50/100 1/2, ठीक है? तो अगर एक की सैलरी 2 है ना, दूसरे की 3 है, तो मोर किसकी है? ए की ज़्यादा है। ए की आपकी 3 है, बी की आपकी 2 है। इफ ए गोट ए 50% राइज इन द सैलरी, यानी कि इसका 50% राइज हुआ है, यानी कि पहले आपकी अगर 100 थी ना, तो अब आपकी वो चीज़ 150 हो गई है, इतना राइज हुआ है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ए का इसका 3 का 50% कितना हुआ? 1.5। तो ये राइज हुआ है, तो राइज आपका ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4.5, ठीक है? 4.5 उसकी सैलरी हो गई। बी गोट ए 25% राइज इन हिज सैलरी। 25% राइज, 25 का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4, ठीक है? 1/4 यानी कि 0.25 पॉइंट, नहीं नहीं, 0.25 तो एक पे हो गया ना, तो 1/4, 2 का 1/4 कितना होगा? 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2.5 हो गया इंक्रीमेंट। अब क्या पूछा है? देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड सैलरीज। ओके, पहले कंबाइंड सैलरीज क्या थी? 5। अब कितनी हो गई? 4 2 6 और 1 7। कितने का इंक्रीज हुआ है? 5 से 7 पे जाते हुए 2 का। 2 का इंक्रीज कितने पे हुआ है? 5 पे हुआ है। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू में 100, 20, तो हमारा 40%। ये रहा, ठीक है? तो मैंने एक क्वेश्चन को ना बहुत डिटेल में बताया है कि अगर कोई पहली बार भी देख रहा होगा तो शायद उसको समझ में आ रहा होगा, लेकिन वही है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में कोई भी चीज़ नहीं आई है ना, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? और सेंड मी एन ईमेल ऑन bhumika.kaushik, let me write it down here, bhumika.kaushik 633 at gmail.com, ठीक है? यहाँ पे मेरे को ईमेल कर देना अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो भी आप मेरे को भेज सकते हो। उसकी फ़ोटो जीमेल पे मैं आपको सॉल्यूशन लेके फ़ोटो क्लिक करके उसका भेज दूँगी। और yeah, thank you so much for watching this video and for liking my content. And if you really liked my content, then please subscribe to my channel, and and yeah, just share this video. All the best for your exam, जो भी एग्जाम आप, तो उसी के लिए ऑल द बेस्ट, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।